Whistle hai, noise hai. Check, 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 check. One, one, two. Much better. Okay, great. So, an auspicious good morning to everyone. Welcome to the Bhopal Literature and Art Festival. Can I see you smiling, please? Yes, I think that's a good note to start with. Or another good note to start with would be some few good lines about books. I'm sure you are fond of शायरीज. मैं अहमद फराज साहब को काफ़ी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ. उनका एक बहुत ही फेमस शेर है. वो कहते हैं कि जो अब के हम बिछड़े हैं तो शायद ख्वाबों में मिलेंगे. जो अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे. तो इसलिए किताबें आपको पढ़नी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि आपको जब फूल मिले आप उनको किताबों में रखें और किताबों से अच्छी अच्छी बातें सीखें. और आज उन्हें किताबों से सीखने के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऐसे लेखक हैं, ऐसे महान लोग हैं, ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं जो चिंतन करते हैं और गहरे चिंतन के बाद अपनी कविताएं, अपने एक्सपीरियंस को सजोकर हमारे सामने पेश करते हैं. आज हम उन लेखकों के ऊपर उनसे रूबरू हैं, उनसे बातचीत करेंगे. एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वाई वी कॉल द भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल द नॉलेज कुंभ ऑफ इंडिया. So once again, welcome to the 6th edition of the Bhopal Literature and Art Festival. I think we must start with a round of applause, everybody. Thank you so much for being here. जो आज का पहला सेशन है, the first session for today is a BLF presentation. It is titled as Climate Change, a term I'm sure all of us know about, have been experiencing it here in Bhopal, especially, and of course around the world as well. The title is Climate Change, Rivers and Landscapes. And for this very session, I would like to invite our guests, authors and discussants on the stage. Please join me in welcoming Mr. Manu Bhatnagar ji, Zordar Talia, as well as please help me in joining Namgay Choden, Zordar Talia unke liye bhi. And along with that, as the moderator of this session, we are delighted to have Mr. Surendra Kumar Sarda with us. Zordar Talia Surendra ji ke liye. I would request all our guests to please take your seats on the stage. Mr. Manu Bhatnagar ji is an architect, urban and environmental planner with 27 years of vast experience in the environment sector. He currently heads the Natural Heritage Division of INTAC as the Principal Director, an alumnus of Cornell University with qualifications in regional planning. He also has a qualification in policy analysis, strategic management, strategic environmental assessment, environmental laws, conservation of rivers, lakes, ecosystems, and sustainable development from prestigious institutions. Here, he has also written and edited many books, including a narrative on the Ganga, A Citizen's Report 2023, and Understanding Rivers 27. Sir, it's a pleasure for us to have you. Please, a round of applause for Mr. Manu Bhatnagar ji. As the second guest, we are delighted to have Namgay Choden with us, all the way from Bhutan. A round of applause, please. Let's welcome her to India in the Shandar manner. Yes. Namgay works at the intersection of climate policy and youth empowerment. She works at the Bhutan Ecological Society on projects related to renewable energy, reforestation, and carbon markets. Her passion also lies in making policy conversations around climate actions more accessible to the young ones here, to the young people around the world, around the globe, through a voluntary initiative called the Bhutan Climate Future Lab and funding to youth-led climate initiatives. It's a pleasure for us to have you here with us. Zordar Talia, please, for her. And as the moderator of this session, we are extremely delighted to have with us Mr. Surendra Kumar Sarda ji with us. He hails from Gangtok, Sikkim, a beautiful place. He is currently the
convener in TAC Sikkim chapter and has also been the General Secretary of Chinmaya Mission Sikkim chapter since 1994. That's a long time. Calls for an applause. He has also served as the director of Sikkim State Cooperation Bank. He was the founder president of the Old Settlers Association of Sikkim and was also the president of Sikkim Chamber of Commerce from 2006 to 2011. He has a deep interest in Indo-Sikkim relations and has given talks on various platforms on this topic. We extend a heartfelt welcome to all of you on the stage, and I would request our moderator to kindly begin this session, and we must support them with a large round of applause, everybody. It's on, sir. It's on. Yes. सबसे पहले हमारे आज के अतिथि और आप गेस्ट महोदय सबको सैल्यूटेशंस नमस्कार देना चाहूँगा। आप लोगों ने हम लोगों को बुलाकर एक अच्छा मौका दिया कि हमारे मनु भटनागर साहब और हमारी छोडेन साहब जो भूटान से आई हैं, वो सिक्किम के नेक्स्ट नेबर हैं कंट्री, तो उनकी बात सुनेंगे क्लाइमेट चेंज पर और भटनागर साहब से रिवर के बारे में कि आज जो बदलाव हम देख रहे हैं कि हमारी रिवर कितनी कमज़ोर हो गई है, गंदी हो गई है, उसकी जो शक्ति है वो हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं, उस कारणों पर भटनागर साहब आपको बताएंगे, लेकिन हमें इस बात को बहुत गहराई से सोचना भी है, समझना भी है। और पहले आज से 30 साल पहले यदि कोई क्लाइमेट चेंज की बात करे तो हम समझते थे कि ये चोचले हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन आज ये जो क्लाइमेट चेंज की बात हमारे दहलीज पे आ गई है और हमारे पॉकेट्स में भी इसका आक्रमण हो चुका है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं। इसका अनुभव कुछ सालों बाद, कुछ शताब्दी डिकेड्स के बाद तो मिल ही जाएगा। तो इससे पहले ही हम सचेत हों तो ये अच्छा रहेगा। और अब क्योंकि अमृतकाल शुरू हो गया है और ये पहला वर्ष है, तो अगले 25 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को जो भी शक्ति लगाना है हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो ये उपयुक्त वक्त हमारे लिए भी आज है कि हम आज क्लाइमेट चेंज और रिवर्स के ऊपर चर्चा करें। तो मेरे साथ मैं क्योंकि सिक्किम से आया हूँ, तो आपको मालूम ही है कि अभी 2-3 महीने पहले वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज का विकराल रूप हम लोग ने देखा, जब ग्लेशियर फटने से 1200 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट ऐसे धूल की तरह बह गया और वहाँ रहने वाले, आगे रहने वाले गांव, शहर सब 2-2 तल्ले तक डूब गए और हज़ारों लोग घायल भी हो गए, मर भी गए और अभी तक करीब 250 लाश तो मिले ही नहीं। ये तो प्रैक्टिकली हो रहा है, हो गया है, ये कोई कहानी नहीं है। तो हमारे मनु भटनागर साहब जी जो रिवर पर एक स्पेशलिस्ट हैं, आपने जो किताब लिखी है, जो यहाँ ये 500 पेज की बुक है, ऐसे इन्होंने 4 और बुक्स लिखी है, टोटल 1000 पेज इन्होंने सिर्फ रिवर, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, हमारे ये तिब्बत में जो नदियाँ चल रही हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं, सब के बारे में बड़ी विस्तृत रूप से डेटाज के साथ, फ़ोटोज़ के साथ करीब 2 साल में, 3-4 साल में ये तैयार हुई है। इतनी मेहनत से हुआ है। जो भी महाशय इस किताब को पढ़ना चाहे आपसे संपर्क कर सकते हैं और इससे देश की, हमारी गंगा की बहुत बड़ी सेवा होगी। गंगा जिस रूप में थी पहले, उस रूप में हम यदि वापस ला सकें तो ये बड़ा सौभाग्य होगा। तो उन्होंने इस बुक में पूरे 11 चैप्टर्स, जिसमें जियोमोरोफोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, फ्लड्स, सुंदरबन डेल्टा, बायोडाइवर्सिटी, एलिंग गंगा,
एंड हाउ टू क्लीन इट, और कंजर्वेशन के लिए क्या काम करें, और लीगल प्रोटेक्शन हम किस रूप में कर सकते हैं, और अनेक बातों पर उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत अब हम डॉक्टर भटनागर साहब से करें, और उसके बाद बीच बीच में हम आप लोगों को भी मौका देंगे। आप भी इसलिए सचेत रहें, कुछ प्रश्न पूछें। हो सकता है इस प्रश्न कुंभ में ही, ये नॉलेज कुंभ में ही बहुत सी बातें हम समझ सकेंगे और कुछ समस्याओं का समाधान भी निकल जाए। प्रभु का आशीर्वाद। सर, इन चैप्टर 3 in hydrology of Ganga basin, your study shows that massive extraction of groundwater for irrigation has declined the availability of water, threatening the whole ecosystem of Ganges. थैंक यू सारदा साहब। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नदी कैसे, उसमें प्रवाह कैसे आता है। हम लोग सब समझते हैं कि भाई बारिश होती है और जो मॉनसून्स के बाद जो है नदियाँ बिल्कुल, और मॉनसून्स में नदियाँ बहुत भरी होती हैं, फ्लड्स वगैरह उस वक्त खूब होते हैं। मगर जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद कहाँ से नदी बहती है, कैसे बहती है? दरअसल क्या होता है कि जो नदी में बेस फ्लो है, वो जो भूमिगत पानी है वो वापस उसमें नदी में आने लगता है। तो जो आपकी गर्मियों का सीज़न है, लीन सीज़न जिसे हम कहते हैं, उसमें भूमिगत पानी जो है वो नदी में वापस आता है और उससे ही उसकी प्रवाह बनती है। जो हिंदुस्तान में दो किस्म की नदियाँ हैं, एक हमारी हिमालयन रिवर्स हैं और दूसरी जो है वो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो स्नो फेड रिवर्स हैं और इनमें भूमिगत पानी भी आता है। यानी गंगा में जो अभी अनुमान लगाया है कि 40% पानी जो है उसमें ग्राउंड वाटर जो है वो उसमें वापस आता है। और जो स्नोफॉल है, स्नो प्रेसिपिटेशन, स्नो मेल्ट है, ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर का जो मेल्टिंग है ख़ास तौर पे जो मेन गंगा है, जो भागीरथ नदी है शुरू में, वो आपकी गंगोत्री से आती है, जो आपका ग्लेशियर है वहाँ पे, जिसका स्नाउट है, मुंह है गौमुख पे। तो स्नो फेड रिवर होती है और भूमिगत पानी भी आता है। अब क्या है कि हमारे यहाँ इरिगेशन जो है, जो हम कृषि में जो पानी लगाते हैं, आज भी जबकि हमने इतने बांध बना लिए, इतने बराजेस बना लिए हैं, तो भी हम लोग 60-70% पानी इरिगेशन में हम ग्राउंड वाटर से ही लेते हैं। अब जब हम ग्राउंड वाटर ले रहे हैं कृषि के लिए, और हमारे शहरों में भी बहुत सारा घरों में पानी की जो पूर्ति है वो ग्राउंड वाटर से ही होती है। कितने ही ट्यूबवेल्स हैं दिल्ली में, जैसे कहते हैं 3 लाख ट्यूबवेल्स प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं। तो जब ग्राउंड वाटर आपका बैठता जाएगा तो ये ग्राउंड वाटर नदी में वापस नहीं आ सकता, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि नदियों का प्रवाह जो है वो कम होता जा रहा है। ये केवल गंगा की बात नहीं, हमारी जितनी भी नदियाँ हैं उनमें जो है पानी का फ़्लो कम हो रहा है। हम लोग पॉल्यूशन की वजह से हम लोग ने नदियों पे ध्यान देना शुरू किया, अरे भाई गंगा गंदी हो रही है, यमुना गंदी हो रही है, कावरी में बदबू आ रही है। मगर फ़्लो जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप पॉल्यूशन का आप सुधार कर सकते हैं, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, आपके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हो रहा है वो। मगर फ़्लो आप कैसे वापस लाएंगे? फ़्लो आप तभी ला सकते हैं जब आपका ज़मीनी पानी का स्तर जो है वो वापस ऊपर आए, और उसके लिए आपको इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे बड़ी चीज़ है जो करनी पड़ेगी। आज की डेट में आपकी जैसे कावेरी नदी है, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो समंदर तक नहीं पहुंच रही हैं, डेल्टा जो है वो बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। तो इसलिए ज़मीनी पानी को, उसका स्तर बढ़ाने के लिए हमें बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। पॉल्यूशन तो आप 4-5 साल में शायद ठीक कर लें, फ़्लो पे अगर आप लगे रहे पूरी तरह से तो भी आपको 15-20 साल से पहले रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और ये सारा हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के
छत्र छाया में, और कभी आपको बहुत सारी बारिश मिल जाएगी एकदम से, और कभी जैसे इस साल आप देख रहे हैं अभी तक पहाड़ों में, हिमालय में बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो नदियों पे इसका क्या असर होगा, ये सोचने की बात है। शारदा साहब। धन्यवाद जी। आपने पानी का जो स्तर गिर रहा है इसके बारे में बताया। एक और दूसरी बात है, गंगा बेसिन में फ्लड्स की समस्या भी हर साल आती है। बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, ऊपर हिमालय के ऊपरी इलाकों में भी, उधर ब्रह्मपुत्र में भी। तो उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे, क्योंकि हम जो है नेचुरल लिविंग से दूर जा रहे हैं। जैसे आपके मैडम हमारे यहाँ भूटान से आई हैं, ये लीव इन नेचुरल स्टाइल इन इकोलॉजी, ये इनका बोलना है। लेकिन हम लोग वेल्थ के लिए समझिए या अपना प्रोग्रेस दिखाने के लिए समझिए, बहुत से कारण से हम जो है ये जो पुरानी वो जो नई जो साइंटिफिक थ्योरी है वेस्टर्न, उस पर चलते हैं और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर पर बात करते हैं। तो हम लोग एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसके बारे में आज की तारीख में जो है हिंदुस्तान की नदियों पे जो हमारी इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट है वो काबिज़ है, और इन लोग ने फ्लड से कुछ मतलब इनका नज़रिया फ्लड से फ्रेंडली नहीं है। मुझे याद है जब हम लोग भूगोल पढ़ते थे स्कूल में, तो हमें पढ़ाया जाता था कि भाई फ्लड जब आता है तो पोषक पदार्थों के साथ जो मिट्टी आती है उससे जो है हमारी खेती जो है वो बहुत अच्छी तरह पनपती है, बड़ी प्रोडक्टिव हो जाती है। मगर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे शहर भी नदियों के करीब बढ़ने लगे, और ये हुआ कि नदियाँ जो हैं जब ज़ोर से बहती हैं तो ये अपना रास्ता बदल लेती हैं। इस किताब के साथ हमने कुछ नक्शे भी बनाए। तो गंगा का सबसे पहला नक्शा जो एक्यूरेट कहा जा सकता है वो 1786 में बनाया गया, जब सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल मेजर जेम्स रेनल ने वो पूरा सर्वे किया गंगा को हरिद्वार तक। वो तब भी गंगोत्री नहीं पहुंच पाए। तो उसमें क्या है कि जब हम 1786 से जब आज का नक्शा कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि जगह जगह पे नदी जो है 20-20 किलोमीटर अपने पुराने रास्ते से हट गई है, नई जगह पे बह रही है। अब क्या है कि उससे कई लोगों का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, किसान का खेती ख़त्म हो जाता है, वो या तो नदी में पहुंच गया या दूसरी तरफ पहुंच गया। तो ये सब रोकने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने एम्बैंकमेंट बनानी शुरू कर दी कि भाई नदी को जो है हम दोनों तरफ से बंद रखेंगे ताकि इसका पानी फैल ना पाए। अब उसका नुकसान आप देखिए कि पहली चीज़ तो जो आपको वो फर्टाइल मिट्टी मिल रही थी वो नहीं मिल रही। दूसरा, जो फ्लड प्लेन के थ्रू आपका भूमिगत पानी जो रिचार्ज होता था वो आपने इलाका कम कर दिया, तो वो भी नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी के इंटरैक्शंस होते थे, यानी कि हैबिटेट्स बनते थे, बिगड़ते थे, कई मतलब मछलियों की स्पीसीज़ जो थीं वो आके यहाँ पर स्पॉन करती थीं, यानी बच्चे देती थीं सीज़न में, वो सब ख़त्म हो रहा है। और इस वजह से फ्लड प्लेन को हमने नैरो जो कर दिया है या हम उस पर एनक्रोच कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम नदी का इकोसिस्टम जो है उस पे हम बड़ा नेगेटिव असर डाल रहे हैं। तो फ्लड प्लेन जो है अब आज की डेट में ये भी कहने लगे हैं कि भाई स्पेस फॉर द रिवर, यानी कि नदी की अपनी जगह है, उस पे आप ह्यूमन एक्टिविटी से एनक्रोच ना करें। आप खेती कर रहे हैं, चलिए वो कर रहे हैं, मगर उस पर बिल्डिंग एक्टिविटी ना करें। गंगा के लिए ख़ास तौर पे जो गंगा बेसिन है उसके लिए सरकार ने 2016 अक्टूबर में गंगा नोटिफिकेशन बनाई। गंगा नोटिफिकेशन के तहत क्या है कि नदी के 100 ईयर फ्लड प्लेन पे, 100 ईयर फ्लड प्लेन क्या हुआ, 100 साल में एक बार भी जहाँ तक पानी आ सकता है या आया है उसका रिकॉर्ड है,
उस इलाके में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मगर हमारे मतलब इतना ह्यूमन प्रेशर है हिंदुस्तान में कि इसको ये इम्प्लीमेंट कम हो रहा है, वायलेट ज़्यादा हो रहा है। मगर हमें अपनी नदियों का जो फ्लड प्लेन्स है उसे इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। वो नदी का मतलब बिल्कुल इंटीग्रल हिस्सा है। सर तो आपने बताया कि अब हमें हमें वी हैव टू लिव विद द फ्लड्स। फ्लड्स का भी एक प्राकृतिक सर लिविंग विद फ्लड्स का कंसेप्ट जो है उसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब जैसे ब्रह्मपुत्र का आपने सुना होगा, हर साल जो है वो खूब फैलती है मॉनसून्स में और खूब नुकसान करती है। मगर उस इलाके के जो ट्राइबल्स जो हैं उनके मकान अगर आप देखें जो पहले के थे वो स्टिल्ट्स पे बने होते थे, यानी कि ऊंचे पानी के लेवल से ऊंचे बने होते थे। वो लकड़ियों पे बैम्बूज पे खड़े होते थे। फ्लड आता था वो ऊपर अपने रहते थे और नीचे से वो निकल जाता था। अब क्या है कि सरकारों ने जो है रिहेबिलिटेशन करना, डेवलपमेंट के रुख से उनको पक्के मकान बना के दे दिए। हर साल वो टूटते हैं, हर साल ठेकेदार जो हैं फ़ायदा उठाते हैं, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट की एक साइकिल बन जाती है। सो वी मस्ट लर्न टू लिव विद द फ्लड्स, एडजस्ट टू फ्लड्स, बट नॉट कम इन द वे ऑफ फ्लड्स। थैंक यू सर। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे आए हुए हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा बार बार रहती है, अखबारों में आता रहता है कि सैंड माइनिंग को रोका जाए, सरकार भी कार्रवाई करती है। ये सैंड माइनिंग क्या है और इसमें नदियों को क्या नुकसान होता है, इस बारे में बहुतों को मालूम नहीं है। तो भटनागर जी इस बारे में बताएं तो कितना अच्छा है। नदी का जो बेड है उस पे सैंड कहाँ से आती है? जो ऊपर मतलब जहाँ से उसके ओरिजिन है, उद्गम स्थल वगैरह हैं, उन इलाकों में पत्थर वगैरह होते हैं। जैसे जैसे वो पानी के बहाव से वो चलते हैं तो वो टूटते हैं, पिसते हैं और उससे जो है रेत बनती है। और ये रेत जो है ये नदी के बेड पे होती है। ये क्योंकि बड़ी पोरस होती है तो इससे भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज खूब होता है। एक दूसरा क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे माइक्रोब्स, फिश, एम्फिबियंस, इन सब का जो है यहाँ पे हैबिटेट भी होता है। अब आप जब इसको ख़त्म करते हैं सैंड माइनिंग करके, तो उसमें क्या है, पानी के बहाव पे भी असर पड़ता है और पानी के रिसाव पे भी असर पड़ता है और उन सारे हैबिटेट्स को भी आप नष्ट कर देते हैं। अब क्योंकि हम लोग अपनी नदियों से बहुत पानी निकाल रहे हैं तरह तरह की इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपको मैं बता दूं कि गंगा बेसिन में 1000 डैम्स, बराजेस, वेयर्स, एनीकट्स हैं जहां से हम नदी को चूस रहे हैं। तो नदी में पानी बहुत कम है और कई जगह पे नदियाँ सूखी हुई हैं। और जब वो सूखी हुई हैं तो आप देखेंगे वो ट्रैक्टर ट्रॉली सब पहुंच जाते हैं और वो अपना रेत निकाल के नदी का बेड जो है वो बर्बाद कर देते हैं। लॉज बनाए हैं मगर क्योंकि उसमें पैसे का इतना ज़ोर है, मतलब आप पुलिस अफसर को मार दो, डीएम को मार दो, मगर सैंड जो है चलती रहनी चाहिए। सैंड का डिमांड बहुत है। आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन सैंड के बगैर चलती नहीं है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अभी तक कोई बहुत अच्छी सॉल्यूशन तो नहीं है, मगर सैंड निकले जा रही है नदियों से और उससे नुकसान हो रहा है। तो अब इस नुकसान को सहना है या हमें कुछ अपने आप को बदलना है, तो ये आपको अब सोचना है। उसके लिए आप तैयार हुए कुछ प्रश्न लेके। और तब तक मैं अब एक नई चर्चा शुरू हो रही है कि दक्षिण की नदियाँ उत्तर की नदियाँ को जोड़ें, तो हो सकता है कि इधर का पानी वहाँ जाए तो वहाँ भी पानी का प्रभाव रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बस 2 शब्द मैं कहूँगा, टोटल नॉनसेंस। ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है कभी इट शुड नॉट सी द लाइट ऑफ डे। इससे जितना नुकसान हमारा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। केन बेतवा की हम बात करते रहते हैं। अगर हम किसी भी रिवर बेसिन में पहले हम अपनी वाटर एफिशिएंसी बढ़ाएं। हम लोग ने खुद काम किया है खजुराहो के इलाके में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, और आप मतलब अगर सही प्रैक्टिसेस यूज़ करें तो पानी की लागत जो है इरिगेशन में 50% कम कर सकते हैं।
अगर आप वही कम कर लें तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी नदी, किसी एक बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ प्रोजेक्ट विच इज़ प्योरली ड्रिवन बाय, लेट मी नॉट से एनीथिंग मोर. बहुत सी बातें आप नहीं कह पाते, लेकिन आप सब समझते ही हैं कि अभी की जो माहौल है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, उस और ये कॉन्ट्रैक्टर्स के स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पैसे के लिए इन्वायरमेंट मिट्टी हो जाए, ख़राब हो जाए, सब चल रहा है. लेकिन अब इसके लिए तो हमें हर युवाओं को, हमारे जो पीछे युवा है, आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय, शताब्दी 20 साल, 30 साल, 50 साल आपके लिए है. आप कुछ और बोलना चाहेंगे? ये जो इंटरलिंकिंग का कंसेप्ट है, ये नदियों में सरप्लस वाटर पे बेस्ड है, यानी कि नदी में फालतू पानी है. नदी में कहाँ है फालतू पानी? आप कोई भी नदी, आपका देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक में कितना ज़ोर से घमासान चल रहा है कि भाई कावेरी का पानी मैं लूँ या आप लें, भाई पानी कितना है? नहीं है. इतना सरप्लस वाटर कहीं नहीं है. शायद एक ही नदी है हिंदुस्तान में जिसमें थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा कहा जा सकता है, और वो है ब्रह्मपुत्र. और किसी नदी में ऐसे पानी नहीं है. आप, ये सारा कंसेप्ट शुरू हुआ था कि भाई जो हमारी स्नो फेड हिमालयन रिवर्स हैं, उसका पानी हम अपने सदर्न रिवर्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे. इसके जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, एनर्जी एस्पेक्ट्स हैं, कॉस्ट एस्पेक्ट्स हैं, उसका कोई स्टडी हुआ नहीं है ठीक से. केन बेतवा लिंक के लिए भी जो इकोलॉजिकल, जो EIA स्टडी, यानी कि एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया जिसको एनवायरनमेंट से दूर दूर से कोई मतलब नहीं है. उसमें इतने फ्लॉज हैं. EIAs कैसे बनते हैं? रोपवे बनाना है आपने मद्रास में, आपने एक स्टडी उठा ली हिमाचल की और यहाँ तक कॉपी कर दिया, इट डज़ नॉट स्नो इन चेन्नई, क्योंकि उसमें वैसे लिखा हुआ था. ठीक है. इस तरीके से बहुत सारे EIAs बनते हैं. बेसिकली जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जिसने प्रोजेक्ट बनाना है, वो कमीशन करता है EIA को और जो EIA लिखता है वो उसे अपनी पेमेंट लेनी है तो उसके हिसाब से लिखता है. तो ये सारी चीज़ें, हमें अब इन चीज़ों से ऊपर उठना है क्योंकि टाइम इज़ नॉट ऑन आवर साइड. शारदा साहब ने कहा अगले 30-40 साल, मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं है हमारे पास. हमें जो करना है अब करना है, और आप लोग ने करना है. और यदि हम न कर पाए तो क्या हाल होगा कि आप सुनेंगे तो घबरा जाएंगे. मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये सारी जो रिवर बेसिन्स हैं, ये सारा बदल के धीरे धीरे रेगिस्तान बन जाएगा. इसमें समय लगेगा, 30 साल, 40, 50, 60, 100 साल, लेकिन बन जाएगा. क्योंकि लाखों साल तक जो नदियाँ इतनी आराम से चल रही थी, हमारे ऋषियों ने जो कहा था कि नेचर के साथ रहो, ये इतनी सुंदरता से निर्मल चल रही थी, सतह कंटिन्यूस चल रही थी, फ्लो था उसमें, वो सारा नष्ट हो गया. और वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं, वो एलिंग से बीमार होके, बीमारी नदी के कारण उनमें हाई मेटल बढ़ गया है. और उस फिश को आप सब खाते हैं, बाज़ारों में मिलता है, तो आपके शरीर में भी वो हाई मेटल चला गया है. अब हाई मेटल जाने से जो कुरीतियाँ होगी, बीमारियाँ होंगी, उस सब से आप सफ़र अभी करेंगे या कर रहे होंगे. तो बहुत कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, कहने का मतलब है. तो इस पर आप सोच के बताइए, क्वेश्चन कीजिएगा. और हमारी नज़दीक देश भूटान अपने आप में एक बहुत ही हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे फर्स्ट है. छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ बहुत इन्वायरमेंट में काम होता है. वहाँ के लोग भी बहुत, बुद्धिज़्म धर्म में भी इन्वायरमेंट का बहुत प्रेम होता है. हमारे धर्म में है, उनके धर्म में भी है, लेकिन वो उसको अभी प्रैक्टिकल है, हम भूल गए हैं. तो हमारे नामगे छोडेन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, यू आर वर्किंग एट भूटान इकोलॉजिकल सोसाइटी सिंस लॉन्ग. वी आर हैप्पी टू नो दैट यू हैव voluntarily initiated Bhutan Climate Future Lab, which imparts climate literacy to youngs. ये समझती हैं कि इस बात को अब बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से करने से फ़ायदा बच्चों से करना है, क्योंकि उनको जीना है आगे. तो उन्हें कैसे संभाले, वो कैसे संभले, और वही अब आगे के युद्ध स्तर में, सड़कों में, ज्ञानी कुंभ में, हर मौके पर, हर जगह निकलेंगे
खाली ज्ञान कुंभ से नहीं, सड़कों में भी निकलना पड़ेगा, राजनीतिक युद्ध भी करना पड़ेगा शायद। तो आप बताएंगे कि भूटान में इतना हैप्पीनेस है, वहाँ पर इकोलॉजी पर क्या सोच है? Thank you. I have a mic here? Well, good afternoon, everyone. My name is Namgay Choden, and I'm from Bhutan. Before I start, I really want to thank the organizers for having me here. Bhopal is such a beautiful city. I'm absolutely in love with it, and I've also read that this is one of the greenest cities in India. So it's an absolute pleasure to be here. Being invited to be part of this session then also prompted me to think about our two countries from an ecological perspective. Manuji, you work on rivers, so that naturally made me think of where the Himalayan rivers come from. And it comes from countries like mine in Bhutan, where we have the glaciers and the cryosphere. And as all of you know, because of climate change, there is immense threat to the cryosphere in Bhutan, but it also extends in the entirety of the Hindu Kush region that extends in Nepal, Pakistan, Afghanistan, and so on. Bhutan is very much reliant on sectors, two sectors, hydropower and agriculture, that are very much susceptible to the changes in the cryosphere due to climate change. It's very much concerning because for Bhutan, our major source of energy, our source of income comes from the hydroelectric projects that we have very painstakingly built over the years. So when a lot of people hear Bhutan, yes, the happiness index comes up, the fact that we have been an environment champion and pro-climate comes up, but this isn't to say that there aren't challenges. We may not contribute in terms of overall emissions very much to the global emissions, but it doesn't mean that we do not have increasing pressure on our natural environment because of our own developmental and economic imperatives and aspirations. So in this context, I really became interested in how we can bring more young people into the policy conversation around climate change particularly. Because I started to observe that for many young people, climate change was such a far away and abstract concept. So to the audience here, and I see a lot of students in the back, how many of you have seen climate change in your textbooks, like the science of it, how to do the diagrams? Can I have a show of hands? Okay. So you've seen it in your textbook. All right, thank you. Second question, how many of you have learned to take action? What you're supposed to do for adaptation, mitigation? Okay, anything, it doesn't matter. So if you feel maybe, you can raise your hands. Okay, cool, some in the front. Now my final question, how many of you think you're actively doing something for climate? May I have a raise of hands? Okay, well, thank you very much. So, if I may be frank, not many hands come up when it comes to the question of how actively I'm doing something. And this is a problem that I have been trying to solve in my own country, and hopefully very soon we will be able to build a regional movement of young people as well. So I call this climate literacy. What does climate literacy mean? It's not only about the science aspect of it. It's not enough for young people today to know, okay, burning coal releases gases in the atmosphere which causes the heating, blah, blah. But young people need to be empowered. Young people need to be given the support and the resources to actually be able to do something about it. And knowing that is climate literacy for me. Now, how do we do this for young people? The Bhutan Climate Futures Lab was basically a voluntary project where we went to talk to young people in various schools around the country. So far, we have engaged around 400 Bhutanese youth. And we basically talk about the particular skills that a young person needs to be able to say,
talk to your policymakers, your elected officials about climate change. And it's very difficult for a young person to do this, as all of you might realize, because you feel intimidated. You feel that, oh, nobody will take me seriously. But there is so much power in mobilizing and organizing ourselves. So we went to schools and we taught young people how to negotiate, how to build coalitions, how to tell stories, because you don't just have to become a scientist to work for climate action. You can be an artist, you can be a writer, you can be an organizer. Even me, I did not study environment science, but nonetheless, I work in this sector. And I have actually also had the opportunity to work on the UN climate negotiations. So how do you become a negotiator as a young person? In all that, I also want to emphasize on the importance of intergenerational allyship. Our moderator here very kindly said that, you know, maybe I decided to talk to young people because I find that it's far more effective, and that's absolutely true. But a crucial component of what we do is also building allyships across our communities and our societies. So we work with the government, and it's very challenging, as both of us know, working in the non-government sector. But it's so wonderful when we can find allies there, when we can find people who truly understand the cause and are willing to do a lot within the constraints that they face. We also want to reach out to the older generation who have worked in many, many years in this sector, who have seen the history of how the negotiations carry on. So building intergenerational allyship is something that a lot of young people here might want to consider if you feel that as a young person, no one will take me seriously. If you find allies, there will be people who are willing to walk the talk with you. So skills, allyships, and now resources. I'm talking about money. Young people have so many great ideas, often very novel, very innovative. And what I've also tried to do, what we've tried to do through the project, is to actually find funding, find grants where young people can actualize the climate projects that they have thought. And we're also looking to scale these solutions from an entrepreneurial or a technological aspect as well. So that work has been very, very exciting, and I am very much optimistic. But maybe because I hear a lot of people scurrying around the room, perhaps we're running short on time. Back on the topic of our ecosystem of the cryospheres, which then turn into the rivers in the Himalayas, and then they come into the plains, and then they go into the oceans. At COP28 this year, which happened in Dubai, the global stocktake happened. So since the Paris Agreement was ratified in came into force in 2015, all around the world, countries have been asked to collectively take stock of how well we have done on our promises there. Not very great, but what was also very interesting for me to realize was that in so many of these UN documents, and these are decisions being made at a global level, which then come back into our own local context, the words mountains have never been mentioned. It has been completely neglected. Cryosphere, maybe once or twice in the IPCC reports in the past, but again, never in a formal document. So there was a lot of effort from a group of countries who are mountainous, who have a lot of cryosphere, to make sure that these words appear in the document. And it seems like such a small thing. It's just a word, but when it comes to the negotiations, that matters so much. So my hope is that we can, especially for Bhutan, that we can really expand beyond our own territory, where we have done great, but there is so much more to be done. We have to now look more outwards, find more allyships, find more partnerships with regions and countries that share very, very similar concerns. And of course, India is definitely one of the countries with which we should be working more
to advance these priorities that impact us across. So I'll keep it at here, and I'm happy to get any more questions from the audience. Thank you. Now we have questions and answer sessions. हाँ, एक हाथ तो खड़ी है, और भी खड़े होंगे हाथ. हाँ, आप लोगों ने बहुत इस ज्ञान कुंभ में सोचा है, समझा है कि अब समस्या का हल कैसे करें और जल्दी करें. देर करेंगे तो फिर क्या होगा, मैंने बोल दिया है, डेजर्टिफिकेशन होगा. एनीवे, स्टार्ट्स. नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपका परिचय देके. मेरा नाम प्रीति सरन है. First of all, I'd like to thank the panelists and Shri Sarda ji for this very educative discussion, and I'm very happy to see so many young students who are going to be the future of our country, and for you, Sarda ji, to let them know that if they don't take action, there will be desertification. So my question to all the three panelists, all the three of you present here as experts, given the fact that Bhutan, our closest friend and neighbor, and a great example of sustainable development, afforestation that you have undertaken. I've been to a beautiful country, and I know we can learn so much from you, as we can from Sikkim. You know, I'm coming from Delhi. I think Bhopal is so green, and as is Sikkim. So there is so much that we can learn from each other. But I would like to ask the question on behalf of our young audience present here. From our distinguished panelists, what are the five, you know, there is something called governments and establishment making efforts, and Namgay mentioned that, you know, you should be negotiating with your governments. But I would say, as a mission mode, as individual citizens, you know, like the Chipko movement, or say no to firecrackers, say no to plastic, what are the 5 or 10 tips that in bullet points you would give to our young audience as what they should do as young citizens of this country? That would be my question. Thank you. थैंक यू. मनु जी, इस बारे में बताएं. You really have me there. There are a lot of recommendations for what the government should do, but what should our youngsters do? First thing is, let us have a movement for water efficiency in the manner we use water. हम पानी को बहुत फेंकते हैं. नल का चल रहा है, मुंह धो रहे हैं, पानी बहे जा रहा है. हम अपनी पर्सनल लाइफ्स में, अपने घरों में हम कैसे कम से कम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं. कहाँ पे हम अपने स्कूलों में, हम अपने स्कूलों को हम क्या एनवायरनमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बना सकते हैं. क्या हम वेस्ट वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं. क्या हम अपना भूमिगत पानी बढ़ा सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग को बड़े लार्ज स्केल पे अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने एजुकेशनल कैंपसेस में हम इनको ये इस किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं इन पे हम ज़ोर डलवाएं. और नाम के लिए नहीं, मतलब वाकई जो इफ़ेक्टिव हों. तो ये सारे काम हो सकते हैं. क्या हम ऐसी इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्या आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि बिजली के वो होता है एफिशिएंसी के लिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होती है. ठीक है. तो जो 5 स्टार वाली है वो कम से कम बिजली में आपको मैक्सिमम इफ़ेक्ट देती है. क्या हम अपने टैप्स में, नलकों में, बाथरूम्स में, वॉश बेसिन्स में क्या हम ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जिससे हम कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें. मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. आपको पता है जो लड़के हैं, जो जब आप नाई की दुकान में जाते हैं, वो कलम बनाता है तो आपके ऐसे स्प्रे करते हैं, आपको भी पता होगा. तो एक बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा अच्छा खासा ये गीला हो रहा है. तो मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर से कहा कि भाई तुम क्या इससे नहा सकते हो. तो 3 बॉटल्स, वो एक बॉटल ली जो 750 मिलीलीटर यानी पौना लीटर की. तो लड़का जो है वो उसने 4 बोतलों में उसने अपना स्नान पूरा कर लिया. ठीक है, यानी कि 3 लीटर. मगर जो हमारे नॉर्म्स हैं वो कहते हैं कि भाई नहाने के लिए आपको कम से कम 25-30 एक बाल्टी तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. तो बहुत सी चीज़ें हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं. गार्डनिंग जो है उसमें हम पानी दिन में देंगे तो बहुत सारा पानी जो है वास्प की तरह इवेपोरेट हो जाएगा. आप वही पानी लेट इवनिंग में देंगे तो कम पानी में ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा. छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप देखें तो बहुत सारा, बहुत कुछ. और आप लोग के तो बहुत आइडियाज़ और भी होंगे, मगर ऐसे ही एक मैंने स्टार्ट के लिए मैं कुछ चंद चीज़ें बोल दी.
जो फॉर एग्जांपल जो एक स्प्रिंकलर वो आपका नलके में फिट करने के लिए वो आता है स्प्रे करने के लिए, तो वो पानी कम पानी उसमें से निकलता है मगर काम आपका फिर भी होता है। तो अब जैसे हमारी जो बिल्डिंग है दिल्ली में, हमने उसमें नलकों में लगा दिया तो हमने ग्राउंड वाटर निकालना बंद कर दिया। फिर हमने एस्टिमेट किया कि हम पूरी दिल्ली के लिए अगर हम करते हैं तो हमारे को करीब 25-30 करोड़ रुपए में हम 80 लाख नलकों में अगर हम फिट कर देते हैं और जो काम 1-2 साल में हो सकता है, तो हमें यमुना पे रेणुका डैम जो 5-7 हज़ार करोड़ का या उससे भी ज़्यादा का बनेगा उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उतना ही पानी हम सेव कर लेंगे। वो बनेगा 10-15 साल में, वो बहुत और नुकसान करेगा हमारे जंगल वगैरह का, हमारे वनों का। और यहाँ पे जो है आप वही काम जो है बाई सेविंग बाई एफिशिएंसी आप कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग ने दिल्ली कैंट में मतलब किया, वो कहते हैं हमारे को पानी कम मिल रहा है, तो भाई आपकी लाइनें कब ले हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, भाई लाइनें बदलो सारी लीकेजेस बंद हो जाएंगी, आपके पास पर्याप्त पानी है। तो ऐसे आप अपने इलाकों में देखिए बहुत कुछ है करने को जिससे हम वाटर पे कंजर्वेशन पे हम जोर डाल सकते हैं। Thank you so much, sir. We just have 5 minutes left, so if we have any other questions, yes. यहाँ पे mic pass कर दीजिए, followed by the person at the back and then the student at the back. Quick questions and quick answers, please. Just a request. Hello everyone. My name is Namgay and I'm from Himachal. I recently shifted from Himachal and pursuing my masters from Bhatnagar. So my question is, हिमाचल में टूरिज्म को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए 4 लेन बनाया जा रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जिससे टाइम कम लगेगा दिल्ली से हिमाचल पहुंचने के लिए। टूरिज्म के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जो पहाड़ कट रहे हैं ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमारे घर कट रहे हैं। तो ऐसे हम जब आते हैं इस तरफ तो काफ़ी बुरा लगता है पहाड़ों को कटता हुआ देखकर। लोगों को कॉम्पनसेशन मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है? आपने भी पॉलिसी कॉन्वर्जेशन के ऊपर बात की है, पॉलिसी चेंजिंग के बारे में बात की है, तो ऐसे क्या स्टेप्स होने चाहिए, ऐसे क्या पॉलिसी नई बननी चाहिए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके? क्या आइडियाज़ हैं आपके? स्पेसिफिक एग्जांपल आप हिमाचल का जो कह रही हैं, देखिए अब पिछले साल या उससे पिछले साल शिमला में हाइट ऑफ टूरिस्ट सीज़न में बिल्कुल पानी नहीं था, ठीक है। तो जब आप ऐसे बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सारे आपके स्प्रिंग शेड्स, कैचमेंट्स जो हैं वो सब डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है। एक तरफ तो ये है कि जो लोकल्स हैं वो चाहते हैं कि भाई लोग आएँ, रेवेन्यू, गवर्नमेंट भी यही चाहती है रेवेन्यू, और जो यहाँ पे लोग हैं वो सब अपनी गाड़ियों में भागना चाहते हैं। आप जानते हैं कि भाई कैसे अभी पिछले ही दिनों में उन्होंने टाइम सड़कों पे ही काटा है, ठीक है। अब क्या हम उसके अब कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, भाई कितना मतलब आदमी वहाँ जा सकता है, क्या हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मतलब मेरे हिसाब से जैसे उत्तराखंड है या इवन आपके लाहौल स्पीति में भी लोग जो हैं इतनी तादाद में पहुँचने लगे हैं। लाहौल स्पीति इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में अब आप जो है फार्मिंग शुरू करवा रहे हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल, वो बारिश ज़्यादा शुरू हो जाएगी, जो उनके मड हाउसेस वगैरह हैं वो सब बहने लगें, दी इकोलॉजी विल चेंज। तो हम बहुत सी ऐसी कदम उठाते हैं जो हम सोचते हैं कि डेवलपमेंट है, मगर जो नेचुरल एसेट्स का हमारा नुकसान हो रहा है, जो हम अपने बैलेंस शीट में नहीं लाते मगर बाद में उसका असर पता लगता है, तो वो नुकसान भी हमें पहले से ही मतलब देखना चाहिए, अंधाधुंध नहीं। अब ये क्या है कि भाई जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, देवभूमि दोनों कहते हैं, दी अपर रीजन, उसमें लोगों को पहले जैसे अभी आज की डेट में आप बॉम्बे से चॉपर लेके आप पहुंच गए देहरादून, देहरादून से आपने चॉपर लिया केदारनाथ, 12 बजे आप, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपने स्नान किया, शाम को आप बॉम्बे जिमखाना में आप अपने दिन की एडवेंचर का बता रहे हैं। इसमें तीर्थ कहाँ है, ठीक है। सो अपर रीजन्स में बड़े लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए जो वाकई तीर्थ करना चाहते हैं। अब नाउ दिस इज़ ऑल टूरिज़म एंड पिकनिक, तो लोगों को कम मतलब एक्सेस कम मिलनी चाहिए, मगर क्या हम ये एनफोर्स कर पाएंगे? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। Thank you so much for the answer. Yes. पांडा चक्रवर्ती है। एक दो प्रश्न मेरे कि एक जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें पन्ना फॉरेस्ट के कोर से भी 20% विल बी सबमर्ज्ड, एंड सो इफ दिस इज गोइंग मतलब फुल स्टीम, फिर कुछ मिटिगेशन मेजर्स हैं, होप है कि मतलब इसको या रिविजिट करने के लिए। और दूसरी चीज़ है आप बोल रहे हैं सर, आई विल रिक्वेस्ट अगर वन क्वेश्चन, बिकॉज एक स्टूडेंट का भी क्वेश्चन हम लेंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसा है कि
जो Yes. मिटिगेट आप नहीं कर पाएंगे, मगर ये है कि अभी परमिशन पूरी तरह से मिली नहीं है. सो वी आर स्टिल होपफुल कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है दैट में रिमेन इंटैक्ट, बट लेट अस सी. We can't take anything for for granted at this point of time, because even आपका जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है दैट हैज़ ऑल्सो उसने भी घुटने टेक दिए हैं. So, but let's see. There are other permissions still to be taken. So the matter is not entirely through. Thank you so much. One last question right there. Please introduce yourselves. Good afternoon. My name is Abhirang Pathak and I am from Delhi Public School, Nilbar. And I was listening to this session very attentively. So I found that Sir said that in Bhutan there are many measures they are using for fighting climate change. So ma'am, can you tell us some measures that India can also use to fight climate change? Wow. I think every country has to figure out a way in which that is the most suitable, in which they can take climate action. I'll share a little bit about what Bhutan has done, but I'm afraid that this may not necessarily, at least how it started off, it may not be applicable to India. And what happened was back in the 70s, we had a very young king who said that development is not only about economic development, but there are other aspects. And notably, he said the environment, along with culture and good governance. So we started off by having a lot of protected areas, a lot of legislation, prioritizing conservation, not cutting down the trees. And what we have today really is the result of the actions that were taken back in the 70s. And Bhutan is also, quote unquote, a carbon negative country. That means that we sequester more, almost 5 times than we emit. But the challenge here is that when we go to a multilateral platform and then we say that, everyone says, well, good for you, well done. But then, our problems doesn't really matter to where we are, because we didn't think of that in the 70s. So I think this is something that Bhutan as a country should really start to think about harder. There was thought leadership back in the 70s, but how do we rejuvenate this conversation in the current context? There is a lot of pressure. India, as a notable example, to decarbonize, to go net zero, and it's not easy. I completely understand it. And it's not enough for a party to just come in and be sanctimonious and say, look, we did all these great things, you should too. It's not that simple. What can India do? Well, I'm hopeful that all of you will be able to do something about it. You don't have to wait to grow up, you can do it now. I think community action is very important. You do things on an individual level, but find people that you like, find people who are like-minded and organize yourself, push for legislation, push for political action. Also in your own rights, choose careers that work for decarbonization, that work for removing emissions from the atmosphere. So I have a lot of hope, I have a lot of optimism for all of you. Or one last thing, run for office. Become an MP who cares about climate, right? So these are all the paths that are available to you. And I wish you all the best in that. Thank you so much. Now, yes, sir, you have to say something. One short injunction more. We are all sitting on the edge of the upper lake. This lake has a very large basin area. Lake was established way back in 13th century by Raja Bhoj by capturing the water of hundreds of streams. One thing which school children can do, if their schools, you can take them in that direction, to ensure that that catchment area, that basin area is well forested, attracts a lot of rain, and so that the upper lake and the lower lake, they always remain full. Okay. The amount of groundwater recharge which is taking through these lake beds is from where you are also getting your water. So ensuring rain, because rain is the only source of water in India and anywhere, rain or snow. Okay. So try and see if you can study your basin and ensure that it remains well forested, thickly forested.
Thank you so much. Thank you so much, Manu ji. Thank you so much, Namgay, and thank you so much, Surendra ji. And of course, something we need to take care of. I know आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, but इस सेशन के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मनु जी जो ऑथर्स साइनिंग डेस्क है ओपन हॉल में अंतरंग के बगल में वहाँ पे जाएं एंड वहाँ पे यू कैन गेट दिस वंडरफुल बुक साइंड बाय द ऑथर हिमसेल्फ एंड वहाँ पे आप उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं. फॉर नाउ आई विल बी इनवाइटिंग ऑन स्टेज निहारिका जी. I'll be requesting her, the founder member of the BLF and member of the Society for Culture and Environment. I'll be requesting her to please be here on stage to present a token of appreciation and love to our moderators and our authors. This is the mascot of the Bhopal Literature and Art Festival, inspired by the Asian tales. The beautiful painting that you see, it is developed by the senior most Gond artist Sri Ram Singh Urveti ji, under the guidance of Shyamji and Swaminathan ji. This reflects a motif rooted in timeless stories. Yes, the beautiful painting. It depicts gods amidst the sacred landscapes of the village. Yes. Zordar Taaliyan for that wonderful session, everybody, please. Thank you so much. This session was sponsored by ONGC. So a big thank you to ONGC for sponsoring this session. And to all the students here and to all our guests as well. I have a question for you. And whosoever answers the question correctly gets this wonderful book with the title The Little Book of Sufi Stories as a gift. Yes. So listen to the question very carefully. Okay? मुझे जिसका भी हाथ सबसे पहले खड़ा होता हुआ दिखेगा हम उसके पास माइक पहुंचा देंगे. आप अपना नाम बताइएगा और जवाब बताइएगा. So the question is, which book starts with the lines, it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of, कोई अपना मोबाइल मत निकालना. हाँ. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. Anyone who wants to give it a try. Should I repeat the lines? या सबको सुनाई दे गई अच्छे से? Which book starts with the lines, it was the best of times, it was the worst of times? You know the answer. Well, okay. Let's wait if anyone else other than Namgay knows the answer. Yes, someone. Okay, sir here knows the answer. At the back as well. Okay, let's have the gentleman at the back. हाँ हाँ yes. Mic on कर दीजिए please. Yes. Yes. Yeah. A tale of two cities. Do you think it's the correct answer? Yes. If it's not, we'll make him dance here, right here. That's the correct answer, yes. What's your name? Abhijit. Abhijit ke liye जोरदार तालियां please. A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Yes. I think that's the answer you had in your mind as well. Thank you so much, sir. Great, बहुत बढ़िया. Well, ऐसे सवाल हम हर सेशन के अंत में पूछेंगे. इतने मुश्किल नहीं रहेंगे, कुछ आसान सवाल भी आएंगे अभी आपके लिए. For now, I'll be inviting my co-anchor on stage, Numra, to introduce us to the next and one of the most valuable sessions we have today. Thank you so much, Siddharth. A warm good afternoon, everyone. The next session for the day is titled World Upside Down, How India is Recalibrating Its Geopolitics, where we'll have Mr. Sujan R. Chenoy in conversation with Mr. Pankaj Sarda.